विकसित भारत का जब भी भारत 24 जिक्र करता है तो जिक्र होता है उस उभरते हुए भारत का, उस भारत का जिसकी तस्वीर और तकदीर दोनों ही आज बदल रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से भारत सरकार ने काम किया है, इसने न केवल सेना के शौर्य की गाथा लिखी है, बल्कि भारत को विश्व के एक अलग तरीके से एक अलग पटल पे रखा है। और चूंकि सेशन की मैं शुरुआत कर रही हूँ और वेटरन्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, सर बहुत बहुत बधाई आप तीनों को ही, क्योंकि ये आपके बिना मुमकिन ही नहीं था, ये तीनों विंग के बिना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए सबसे पहले बधाई के साथ ही मैं शुरुआत करूंगी। और उत्पल से सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी सेना की है, तीनों विंग की है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है, देश एकजुट हो वो देखने की जरूरत है। और ये हमने अब तस्वीरों में देखा भी है, जब डेलीगेशन 7 डेलीगेशन भारत से विदेशों की यात्रा पर रहा और वहां जाकर के एकजुट होकर के सर्वदलीय जो है ये डेलीगेशन वहां पहुंचा, तो इसने भारत के कॉन्फिडेंस को वहां पर दिखाया। इसके बाद की मैसेजिंग वर्ल्ड को क्या जाती है? First of all, thank you so much, for giving this great honor as a veteran and speaking so high about Operation Sindoor and its entire culmination to this, wonderful, moment of, in the process of, the time. अभी जो आपने मुझे बताया कि कॉन्फिडेंस एंड तीनों सेना का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो लेट मी टेल यू दैट टुडेज वॉरफेयर इज नो मोर ए वॉरफेयर ऑफ वन पर्टिकुलर और वन सिंगल सर्विस. इट इज जॉइंटमैनशिप, इज इंटीग्रेशन, because it is net-centric warfare, it is electronic warfare, information warfare, space warfare, cyber warfare, and in addition to that, it is also the Army, Navy, and Air Force. They jointly, they undertake the mission objectives or mission mode objectives as given by the political leadership or the elected government of the day. Because आपको जैसे पता होगा कि in any democratic country, ultimately, any war that you go to with any adversary must have a political objective, right, and also must have a military objective. And therefore, the three services chief, when they are invited, as a part of the CCS, which is called the Cabinet Committee on Security, right, sir, पहला सवाल पूछा जाता है कि what do you want us to achieve? Up to what extent do you want us to go? What you have in your mind? And what is the, that political objective, which has a underlay in the military objective. So what do you want us to do? So आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है. And in this particular case, Operation Sindoor, for last 5 decades, Pakistan was involved in proxy war. And that proxy war, जैसे जिसको हिंदी में बोलते पानी अभी सर तक आ चुका था, something had to be done. Pakistan had to be retributed. Pakistan had to be severely punished. And therefore, the government of the day, they chose to strike at Pakistan where it hurts most. But look at the maturity of the Indian government. What they said all the time is that this is only a process of retaliation. Because we are not going to escalate if Pakistan decides not to escalate. But unfortunately, Pakistan, the way Pakistan is, they cannot, shy away, or they will always, do this kind of funny things, even at the cost of their, writing their own death warrant. Right. And जब ये हुआ, तो they started pounding the civilian area and also attacking the military establishment. And therefore, India had no other option but to go wholehearted and teach Pakistan a lesson. Now, when the whole thing, when it got enacted, President Trump came in between, and he, made that famous, statement saying that, I was instrumental in getting the ceasefire enacted. Now, India had to expose Pakistan because जिस तरह से narrative, was built up at international level, in international media, and proactively Pakistan was going about it. India had no other option but to also be, hyperactive or proactive. और उसीलिए ये जो डेलीगेशन डिसाइड किया गया, they had to go, on the world arena, world fabric, and expose Pakistan. And I'm sure, you will agree with me that they have done a wonderful job. We have conveyed our, meaning
that Pakistan is, basically export hub of the international terrorism, and Ji. Pakistan must be curtailed, and must be curtailed, with all the force at the world disposal. Ji. Now, subsequently, we'll discuss as to how Pakistan has been made the chairman of the, Taliban Sanction Committee and vice chairman of the, the terrorism body, which is part of, and both these, bodies are of the United Security Council, and how Pakistan is getting billions and billions of dollars worth of aid, and nobody is willing to put them into the grey list, of the FATF. Now, this is the reality of world, जी and that we need to discuss, maybe in our subsequent dialogue. बिल्कुल। हरीन सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, और क्योंकि वायुसेना की भूमिका भी इसमें बहुत अहम रही है, वायुसेना की ताकत को आपने पिछले कुछ वर्षों में कितना बढ़ते हुए देखा है? क्योंकि करगिल के युद्ध में भी भारत किस तरीके से युद्ध के मोर्चे पर लड़ा और क्या जीत हमें हासिल हुई? वायुसेना की ताकत इस समय कितनी एक्सपोनेंशियली बढ़ी है और आगे आने वाले दिनों में कितना विकसित होता हुआ आप देखते हैं? क्योंकि अब जो सरकार है वो मेक इन इंडिया की बात करती है, मेड इन इंडिया की बात करती है, तो क्या बदलाव आपने महसूस किया? अभी हम सबको पता है कि भारतीय वायुसेना जो है वो जो 4th लार्जेस्ट थी, अभी वो 3rd लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड है। एंड जो इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं एंड जो एयरमैन्स हैं, इनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। हमारे एक एयरफोर्स में एक चीज़ हमेशा आपको पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, राइट। हम शांति काल में जितना ही ज़्यादा पसीना बहाएंगे तो युद्ध काल में शायद हमें इतना खून कम बहाना पड़ेगा। तो इसी तौर पे एयरफोर्स काम करती है। एंड 2014 के बाद जो पूरा बदलाव आया है, नॉट ओनली एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तीनों में, और ये जो बदलाव आया है इतना अच्छा है। मॉडर्नाइजेशन जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है, चाहे आपको मीन्स बहुत सारी चीज़ें शायद अभी मीडिया में भी नहीं होगी कि हमारे पास ड्रोन है, एंटी ड्रोन सिस्टम, इसकी कभी किसी ने बात नहीं की थी। बट जब पाकिस्तान ने जो चाइना से ऑब्सोल्यूट हो गए जो ड्रोन्स थे, बहुत ही चीप वर्जन जो ड्रोन थे, उसको उन्हें जब इंडियन सिर्फ डिफेंस लोकेशंस के ऊपर नहीं बट जो पब्लिक थी, आम पब्लिक थी, उसके ऊपर भी, एंड जो वाइटल जो पब्लिक प्लेसेस थे उसके ऊपर भी अटैक करने का ट्राई किया, तो हमने उसको रोका है, उसको मार गिराया। तो ये जो था, हमने कभी भी शायद लोगों ने, जब तक हमने ये एंटी जो डिफेंस सिस्टम थी हमारी, उसको हमने एक्टिवेट नहीं किया था, तब तक शायद आम जनता को ये पता नहीं था कि हमारे पास एक कैपेबिलिटी है। बट वी आर रेडी। हमारे पास ये जो आपने देखा अभी यूक्रेन ने FPV ड्रोन के द्वारा रशिया के 41 एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया, ये कैपेसिटी भी हमारे पास है। हमारे तरह बहुत तरह के डिफेंस ड्रोन है, सर्वेलेंस ड्रोन है, हमारी जो मारक क्षमता है, जैसे राफेल के आने के बाद ये जो साउथ एशिया है उसके अंदर पूरा गेम चेंज हो चुका है। भारत का जो पावर है, एयर पावर है, इतना अच्छी तरह बढ़ा है कि अभी चाइना भी सोचेगा। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसिस को तबाह कर दिए, उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उसको भी हमने हेलो बोल के आ गए वापस, तो उससे चाइना भी घबराया हुआ है। चाइना को भी पता चला कि भारत को जिस नज़र से वो देखता था, अभी पाकिस्तान के पास हमने जो पिन पॉइंट हमने अटैक किया, पहले उनके 9 जो ऑर्गेनाइजेशन थे, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो अड्डे थे उसको हमने ख़त्म किया। उसके बाद भारत के ऊपर जब उसने हमला करने का ट्राई किया, हमने बोला था कि हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डों को मारा है, हमने आपके ऊपर अटैक नहीं किया है। बट जब पाकिस्तान ने ये किया तो हम तैयार थे, और इसीलिए हमने जब सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स ने उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम थी उसी को ख़त्म किया। अगर एक बार उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद लड़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचता। हमारी मिसाइल जब तक उनको पहुंच के मारेंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा। एंड ये मानिए कि हमारी जो इंडियन नेवी थी, उन्होंने तो सिर्फ रेडी देश दिखाई है, अगर वो भी एक्टिव हो जाती तो शायद पाकिस्तान का क्या होगा पता नहीं है। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, आजकल आपने सुना होगा थिएटर कमांड्स, आजकल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जो काम करती है वो कोऑर्डिनेशन, पूरा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ होती है, और उसको इट इज़ नोन एज अ कोऑर्डिनेशन कमांड।
अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग एरिया में, रीजन में कोऑर्डिनेशन कमांड्स होता है। तो आजकल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जो काम करती है ऐसे कोऑर्डिनेशन से काम करती है। तो सपोज अगर एयरफोर्स ने बहुत अच्छा किया है तो एयरफोर्स ने अच्छा किया है बिकॉज दे हैव ए इनपुट्स फ्रॉम द आर्मी ऑल्सो, फ्रॉम द अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑल्सो, जी, जी। एंड नेवी का भी बैकअप उधर था। तो इस तरह से हमने किया है। एंड मैं मानता हूँ कि न्यूक्लियर का हमें वो डरा रहे थे कि हम न्यूक्लियर कर देंगे। तो आप ये समझिए कि जब इन्होंने एक छोटा ड्रोन से हमने अटैक किया और हमने उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए, तो मैं यहाँ पर जो भी हाजिर है उनको बताना चाहूँगा कि यू बी रेस्ट एश्योर्ड, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर का कदम उठाने भी जाएगा ना, तो हम उससे पहले हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज डेफिनेटली कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ तो वहाँ बदलाव हुआ, जिसके बाद हमने देखा इजिप्ट से बोरोन पहुंचता है, तो जाहिर है इसके पीछे डिप्लोमेसी भी है, रणनीति भी है, और डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आना, इसके पीछे भी जो रणनीति है वो भी जाहिर है। इसको लेकर के चाइना भी कहीं ना कहीं सतर्क है। जयदीप सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, किसी भी युद्ध के क्षेत्र में या फिर उस स्थिति में निर्णय लेना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में क्या लगता है आपको, कौन से वो फैक्टर्स थे जिसे चूज एंड ऑन किया गया, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर जब अंजाम दिया गया तो उस तारीख को, उस समय को तय किया गया, और उसके पीछे की रणनीति क्या रही, और नुकसान सर पाकिस्तान को क्या हुआ? सबसे पहले तो आज के दिन जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, जब 1 महीना हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने प्रचंड पराक्रम दिखाया, और तब भारत 24 यहाँ गुजरात में, वो गुजरात जहाँ पे तीनों फोर्सेस ने अच्छा काम किया, एंड वी शेयर अ लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद दी पाकिस्तान, तो उसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ आपको कि आप यहाँ पे गुजरात आए हैं और गुजरात के माध्यम से हम इस प्रचंड चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर। आपने जो सवाल पूछा है उसका एकदम सटीकता से जवाब देते हुए कि वो क्या निर्णय शक्ति थी कि जिसके कारण यह निर्णय लिया गया। काफी लोगों के मन में ये उत्सुकता थी, लगभग ये एंग्जाइटी भी बढ़ती जा रही थी कि कब बदला लेंगे। सारे के सारे भारतीय ये चाह रहे थे कि ये बदला लिया जाए, बट 2 या 3 चीजें डिफेंस के किसी भी मिशन में बड़ी कारगर होती हैं और बड़ी मूलभूत होती है। एक होता है सरप्राइज, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, तो वो मेंटेन करना था। देश में सवाल ये नहीं था कि अटैक होगा या नहीं होगा, इट वॉज नॉट अबाउट विल इट हैपन, इट वॉज अबाउट व्हेन विल इट हैपन। तो वो दिन देने थे, बट वो सरप्राइज का एलिमेंट मेंटेन करना था। फिर जो आपने पूछा, जो टारगेट्स हमने सिलेक्ट किए, जो एम या मकसद हमने लिया, सिलेक्शन ऑफ एम एक होता है और एक होता है मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। तो हमने एम सिलेक्ट किया कि भारत वो देश है जो आतंकवाद के सामने लड़ता है। विश्व में पहली बार, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म अलग नहीं है, हम टेररिज्म को अटैक करेंगे। तो ये सिलेक्शन ऑफ एम था। ये करने के लिए, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करने के लिए डिप्लोमेटिक स्टेप्स का आवरण जरूरी था, उसको फॉइल करना था। पाकिस्तान को, पूरे विश्व समुदाय को, सबको उसमें रखना था कि कब होगा। और तीसरा जो काम हमने बहुत अच्छे से किया, बढ़िया से किया, और वो ये था कि वी टोल्ड कि हम लोग कुछ ऐसा ब्लैकआउट ड्रिल, मॉक ड्रिल करने वाले हैं। ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है? इज इंडिया एंग्शियस कि हमारे ऊपर कुछ होगा? इसी अचंभे में हमने अटैक किया। सो कीपिंग ऑल दिस बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एन अटैक इन माइंड, भारत ने अपने टारगेट सिलेक्ट किए, उनको अटैक किया। टाइमिंग भी बड़ा अच्छा रहा। और एक लास्ट लाइन के साथ खत्म करूंगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ साथ खाली सैन्य की सफलता नहीं थी, हमने नारी शक्ति को भी देखा, साथ ही साथ राजकीय इच्छा शक्ति और बड़ी तादाद में पहली बार नागरिक शक्ति का भी परिचय ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को कराया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसकी जो झलक है, हमने लगभग जितनी बार भी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए उसमें हमने देखा है। और सिंदूर का रेलेवेंस उत्पल सर बहुत भारत की संस्कृति में होता है। लेकिन अगर मैं नेवी के मोर्चे पर आपसे पूछूं तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हमारी क्षमता इस समय क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की क्षमता उस क्षेत्र में तो नहीं है। तो नेवी की भूमिका क्या होगी आने वाले दिनों में भी? अब जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान इज ऑन, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पे भरोसा तो नहीं कर सकते, इसलिए अभी हमें और ज्यादा तैयारी के साथ रहना पड़ेगा। तो नेवी इस समय क्या कुछ कर सकती है, क्या तैयारी हो सकती है?
See, Navy is a very potent force, and I'm not here to be a salesman for the Navy, but मैं ये जो बोलने जा रहा हूँ ये बिल्कुल fact है, reality है. Navy is the only service which has got no boundary. It has an international maritime boundary line, but that is notional. Like for the Air Force and Army, there is a LOC, there is a LAC, there is an international boundary. Navy operates in an international environment, and still it can pose certain amount of very massive danger to the adversary. Why? Because you operate in the medium of water, you can go close to the adversary, and at the same time you can come out at a time and a place of your own choosing. Secondly, imagine the Navy operates in the form of a carrier battle group operations and surface strike operations, anti-submarine warfare operations, and this submarine deployment is absolutely top secret, and in the naval headquarters or the command headquarters, only very handful of people they know where the attack submarines, nuclear submarines, SSNs, and they are deployed. And they all are deployed round the year, and whether war or no war, Sindoor, Operation Sindoor or otherwise. Therefore, you have to be at it all the time. Secondly, Navy is the only service that is an instrument of foreign policy. Unfortunately, and it's a reality, and we have been saying this all along, that because of the land-centric mindset, and because Mughals and the Britishers and all from that time onwards, you became so intensively obsessed with the land-centric warfare that you forgot the basic fact that India is a peninsular country. India has a 7,516 kilometers of coastline. Right. And you are jutting out in the Indian Ocean with Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean, on your three sides. गुजरात की जो जाहो जलाली थी पुराने जमाने में, that was also because of the sea. गुजरात के जो लोग थे वो पूरे अफ्रीका, एशिया, and मिडिल ईस्ट वगैरह सब व्यापार करने जाते थे. And that was the Gujarat. Somehow we lost some connect with the with the sea. And the moment we lost the connect with the sea, Gujarat had to bite their the own history in some form or the other. That is a reality. But जो क्या होता है in maritime warfare, they say that you can build an army, you can create an army, or you can create an air squadron, but you have to build navy. You cannot buy navy. जी. Because it takes years and years. It takes 7 years to build a ship. Secondly, navy is a capital intensive force. One ship today, even a small, an average size, will cost you nothing less than 2,000 crores. जी. A aircraft carrier in today's context, INS Vikrant, जो अभी indigenous aircraft carrier, which is the prestige of the Indian Navy in India, it has cost us 35,000 crores. So this is the kind of money that you are talking about. One attack submarine will cost you nothing less than 3,000 to 4,000 crores. Now, when you operate such kind of a force, it's a lethal force, and it can do a lot of things. Out of two major things, if you go into the Napoleon era, or if you go into Mahanian theory, Mahan was a US admiral, thinker. And from that time onwards, the two basic, the concept of the Navy is sea control and sea denial. When you control the sea, that means I'll give you India-Pakistan context, that right from Karachi, Gwadar, Ormara, Pasni, Jiwani, and right up to the Persian Gulf or the Strait of Hormuz, you can choke that area. And you do not allow any kind of a oil tanker, I'm just giving one example, any kind of oil tanker or supply ship entering into Karachi. In 71 war, Indian Navy exactly did this. We choked Pakistan first, and then we carried out that lethal strike, missile strike, on the night of 3rd and 4th of December, which is celebrated even today, 4th December as a Navy Day. And the Karachi, वो तो जल रहा था for 15 days. And it was so bad that Pakistan was not left with even a drop of a POL. Therefore, Pakistan had to surrender. And that created Bangladesh. Sea denial is a different concept. बिल्कुल. In sea denial, you basically is done with the submarines. So when submarines, they are deployed,
they fire the torpedo, the missiles, and and various weaponry on the the naval fleet which Right, are sir. trying to exit, and therefore you deny the sea to the enemy. बिल्कुल So, with the combination of these two, जी. you can virtually choke the nation, and that is what the beauty of Navy. दिस इज व्हाट सर आई वाज टॉकिंग अबाउट बिकॉज नेवी हमने देखा है नेवी हमारे पास इतने मजबूत एक फोर्स के तौर पर है कि पाकिस्तान अगर उस क्षेत्र में बढ़ेगा तो हारना उसका तय है There सर is- मैं there- just only one line that there is no denying of the fact, and even Pakistan is also agree. Right, sir. The day Indian Navy enters into the combat, That's Pakistan absolutely is true. finished. बिल्कुल ये बहुत सही बात है सर और यही शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने कभी कोशिश भी नहीं की क्योंकि हार उसके सामने होगा सर मैं क्विक आपसे क्वेश्चन ले लेती हूँ बहरीन से सबसे पहले आपसे क्योंकि अभी हमने सुना है कि राफेल के जो पार्ट्स हैं वो भी अब भारत में बनेंगे मैं चाहूंगी जरा संक्षिप्त में आप मुझे इसका उत्तर दीजिए इसका असर विश्व के पटल पर क्या होगा और फिर सर मैं आती हूँ आपके पास आपने देखा होगा कि पहले हम इम्पोर्टर थे, नाउ वी आर ए बिग लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ द डिफेंस सिस्टम्स। हमारे तेजस भी बहुत सारे कंट्रीज में जा रहे जी। हैं एंड राफेल का अभी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है और जो राफेल का जो मेन पार्ट है फ्यूजलेज, जो विंग्स के अलावा जो पार्ट है टेल विंग के अलावा कॉकपिट से लेके टेल विंग तक जो पार्ट है वो हमारे उधर बनेगा। तो पूरा जो ब्रेन है पूरी बॉडी है वो अभी हमारे उधर बनने जा रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है इससे एक तरफ हम ऑलरेडी हमारे लड़ाकू विमान बन रहे हैं, दूसरी तरफ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि कल का न्यूज़ था कि पुतिन ने अपनी मिसाइल का जो प्रोडक्शन था बहुत जबरदस्त बढ़ा दिया। तो अभी हमारे पास जैसे हमें फाइटर प्लेन में डीआरडीओ को बहुत ज्यादा वेट करनी पड़ी क्योंकि अमेरिका ने जानबूझ के डिले करवाया था हमारे जेट इंजन के लिए। तो अभी कावेरी इंजन बनके तैयार हो चुका है जो डीआरडीओ ने बनाया। यानी सशक्त सर अब होने की दिशा में हम आगे यस बढ़ रहे हैं तो इसीलिए ये होगा कि जिस तरह से हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं हर एक चीज में, तो ये दिखाता है कि हम लार्ज इंपोर्टर से एक्सपोर्टर तो बन भी गए हैं और उसके साथ हम बहुत बड़े जो एयर पावर है वो बन रहे हैं एंड प्रोडक्शन से बहुत सारे देश हमारे साथ भी उसके ताल्लुकात बढ़ेंगे। और आपके पास टाइम कम है, जी मैं जी ज्यादा सर जयदीप सर बस एक छोटा सा रिएक्शन 6th जनरेशन के लिए अब हम पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं, इंडिजिनस बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं एक लाइन में आप मुझे क्लोजिंग कमेंट्स की तरह से ही बोलूंगा। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि ड्रोन वॉरफेयर क्या कर सकता है। आई विल नॉट बी जंपिंग द गन। अगर मैं भारत 24 के मंच से, प्रोग्रेसिव गुजरात कॉन्क्लेव के मंच से ये कहूं कि अगर अगली लड़ाई हुई और इंडियन आर्मी को कुछ करना पड़ा, रोबोटिक्स वॉरफेयर, क्या बात है जय हिंद की सेना करते हुए रोबोट्स जाके खत्म करके आएंगे एंड वी विल बी एट पीस एंड द नेशन विल बी सिक्योर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों से मिलकर हम सभी को बहुत अच्छा लगा और आपकी शौर्य की गाथा इस समय पूरा देश गा रहा है। एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर।